नमस्कार, मैं हूं धर्म प्रकाश रुद्र और आप देख रहे हैं डिस्कवरी इंडिया। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बाहर से खाना मंगवाना सेफ है या नहीं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कि वह लड़की जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय पर नाक पर मुक्का मारकर नाक तोड़ने का आरोप लगाती साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस लड़की ने आरोप लगाया कि मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया लेकिन खाना देर से आने लगा, तब मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल किया। इस बात से गुस्साए जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने मेरे नाक पर मुक्का मारा और मेरे नाक में इंजरी आई। इस पूरे मामले का आखिर क्या वीडियो है, पहले आप वो देखिए, इसके बाद क्या हुआ इस पूरे मामले में वह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। Guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. Guys, let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was he was so rude. He was so freaking rude, and because I have sushi with me, so I usually don't open my full door. So I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, "Bhaiya, you wait, because I need to check with the team. Either they'll make it free or I don't want the order." And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it. I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, "Bloody, I'm your slave or what? You are asking me to wait for such a long time, what the hell?" And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that, he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being a single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. So guys, after that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation. And it seems like after the x-ray, my bone is broken. So we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. Also guys, so when I started this video, that snippet is after I visited the hospital, so I had put in just pictures where you can see how badly I am bleeding and what my condition is literally. And I am able to talk right now just because I had been to the hospital and they gave me some high antibiotics and painkillers. Because of that, I am able to talk this much. And also, thank you so much for Bengaluru, Karnataka police. Like, the police station I visited, they were like so humble and gentle, and they literally took care of my concern and they listened to me. And I was so scared after the incident, what happened. So they were like, "Till the time we are alive, madam, you need not worry about whatever is going on." So that's the update, and I have all the FIR copy and the doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. And you guys know me, like, I being an influencer and face for you guys. If this gets ruined for me, I don't know what next stands there for me. But I would love if you guys really support and share this video as much as possible so that this does not happen to anybody out there. And thank you so much for watching. तो आपने देखा कि किस प्रकार से युवती जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय पर
लेट से आने का आरोप लगा रही है। साथ ही बता रही है कि किस प्रकार से डिलीवरी बॉय ने उसके नाक पर मुक्का मारकर उसको इंजरी दे दिया। आपको बता दें कि नज़र आ रही युवती वीडियो में जो इतनी कुछ कह रही है और आरोप लगा रही है, वह पेशे से एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है और इस युवती का नाम हितैषा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हितैषा ने फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो से खाना मंगवाया था, लेकिन लेट होने पर उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जिसके बावजूद थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय उनका ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचा, लेकिन हितैषा ने खाना लेने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से डिलीवरी बॉय भड़क गया और उनके चेहरे पे मुक्का जड़ दिया, जिससे उनकी नाक में इंजरी आई है। यह मामला तब गरमाया जब इस युवती ने इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर पूरा मामला लोगों को बताई। इस वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि युवती के नाक से खून बहता नजर आ रहा है। युवती ने डिलीवरी बॉय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डिलीवरी बॉय ने उसे ये कहा कि क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं, और यह कहकर जोर से उसने मेरे नाक पर घूंसा मारा और फरार हो गया। उसके घूंसे को मारने से मेरे नाक में इंजरी आई है। पूरे मामले में युवती, जो कि बेंगलुरु की रहने वाली है, बेंगलुरु पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि युवती द्वारा शेयर किया गया वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और जिसने भी इस वीडियो को देखा इस मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं सोशल मीडिया पर जोमेटो और कंपनी के डिलीवरी बॉय के प्रति काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको यह भी बताएं कि इस पूरे मामले में कंपनी ने कहा कि हम इस मामले पर पूरी अपनी नज़र बनाए हुए हैं और कंपनी हितैषी से माफ़ी भी मांग चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदद की बात भी कंपनी कह रही है। वहीं इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ अब सामने ले लिया है। जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय जिस पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसने एक वेबसाइट से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने उस महिला के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। आपको बता दें कि इस डिलीवरी बॉय का नाम कामराज है और वह कह रहा है कि उसने उस महिला के साथ कुछ भी ऐसा बदतमीजी नहीं किया है जिससे उस पर यह आरोप जिस प्रकार के लग रहे हैं। साथ ही कामराज ने यह भी कहा कि हितैषा जो मुझ पर आरोप लगा रही है वह सब बेबुनियाद और झूठा है, क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाई है। कामराज ने कहा कि जब वह हितैषा के घर पहुंचा और उन्हें उनका ऑर्डर किया हुआ खाना दिया, तब वे उम्मीद में खड़ा था कि वह पैसे देगी, क्योंकि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था। साथ ही उनका डिलीवरी बॉय ने कहा कि मैं उनसे माफ़ी भी मांग चुका था कि मुझे थोड़ी ट्रैफिक में फंसने की वजह से देरी हुई और इस कारण से मैं थोड़ा लेट हुआ, इसलिए वो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन वह लगातार मुझे लेट आने को लेकर मेरे से झगड़ा कर रही थी और वह कह रही थी कि खाना 40 से 45 मिनट के बीच आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम लेट हो चुके हो। और मैं उनसे इस बात को लेकर बार बार लगातार माफ़ी मांग रहा था। डिलीवरी बॉय ने आगे कहा कि हितैषा ने खाना लिया और फिर पेमेंट देने से भी मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं पेमेंट नहीं दूंगी। वो जोमेटो के चैट सपोर्ट से बात कर रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद वो अब पैसे देगी। मैंने उनसे पैसे देने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मुझे गुलाम कहा और चिल्लाते हुए कहा कि तुम आखिर कर ही क्या सकते हो। इसके बाद जोमेटो सपोर्ट ने मुझे बताया कि ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद कामराज ने आगे कहा कि ऑर्डर कैंसिल होने के बाद जब मैं उनसे खाना मांगने लगा, तब उन्होंने खाना वापस देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और जब मैं समझ चुका था कि शायद वे खाना देने के मूड में भी नहीं हैं, तो मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लेकिन जब मैं लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो उन्होंने मुझे गाली दिया और मेरे ऊपर चप्पल भी फेंकी। साथ ही इस पूरे मामले में कामराज ने यह भी कहा कि हितैषा ने मुझे लिफ्ट तक इस्तेमाल करने नहीं दिया और जब मैं सीढ़ियों से आने लगा तब मैंने यह किस्सा
मैंने जोमेटो सपोर्ट सिस्टम को सुनाया, उन्होंने सहानुभूति भी दी, लेकिन समस्या यही है कि मेरे पास मुझे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद शाम में मुझे पुलिस ने बुलाया और मुझसे पूछताछ की। हालांकि मुझे पुलिस से कोई समस्या नहीं आई, लेकिन मुझे खुद को अरेस्ट होने से बचाने के लिए 25,000 रुपये का लीगल भुगतान करना पड़ सकता है। इधर विवाद बढ़ता देख जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो हितैषा के मेडिकल खर्च उठा रहे हैं और हितैषा के साथ कामराज की भी संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक उन्होंने कामराज को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, हालांकि वो उसके कानूनी खर्च भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामराज ने पिछले 26 महीने में 5,000 से अधिक डिलीवरी किए हैं और उसका रेटिंग 4.57 के साथ शानदार रेटिंग है। दीपेंद्र ने कहा कि वो इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले आप अपने तक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।